Which of the following motors is preferred for automatic drives? Ward-Leonard control DC motor. Ward-Leonard method of speed control. Ward-Leonard method of speed control is achieved by varying the applied voltage to the armature. Hence, it is basically a voltage control method. The connection diagram is shown below. Three-phase AC supply, DC generator, DC motor, AC motor, load, motor generator, MG set. In the above system, M is the main DC motor whose speed is to be controlled and G is a separately excited DC generator. The generator G is driven by a three-phase driving motor. The speed control of DC shunt motor in both directions can be obtained by Ward-Leonard method. The main advantage of the Ward-Leonard drive are as follows: a smooth speed control for DC motor over a wide range in both the directions is possible. It has an inherent braking capacity. The lagging reactive volt amperes are compensated by using an overexcited synchronous motor as the drive, and thus the overall power factor improves. When the load is intermittent, as in the rolling mills, the drive motor is an induction motor with a flywheel mounted to smooth out the intermittent loading to a load value. This is connection working explained. Three-phase AC supply, variac AC voltage controller, AC motor driver motor, DC generator, techno generator, DC motor controlled motor. Connection shunt field common to both DC generator and DC motor. This is circuit diagram. Three-phase AC supply, variac V1, M1 AC motor driver, देखिए डीसी जनरेटर, अब देखिए यहाँ से A1 A2 वेरिएबल डीसी आउटपुट मोटर M2 डीसी मोटर कंट्रोल्ड working explanation. Three-phase AC supply is given to the variac. Variac controls the AC voltage supply to the AC motor driver motor. Speed of AC motor changes according to the variac output. AC motor drives the DC generator, techno generator. DC generator output voltage varies with speed of AC motor. This variable DC voltage is supplied to the DC motor. Hence, speed of DC motor is controlled. Key point is smooth and wide range speed control. Good for heavy duty applications. Efficiency depends on both motor generator. Ward-Leonard method is an electromechanical system. Speed control. Decrease variac output. AC motor speed decreases. DC generator voltage decreases. DC motor speed decreases. Increase variac output. AC motor speed increases. DC generator voltage increases. DC motor speed decreases. H-type poles are used to transmit the voltage up to 132 किलोवोल्ट. देखिए, here are some design characteristics for consideration. Pole height. The H-frame design allows for shorter poles as the wires are attached in a horizontal configuration to the structure rather than vertically when compared to the double circuit monopole and the single circuit monopole. The H-frame structure is the shortest option. Pole diameter. Compared to double circuit monopole, the pole diameter and foundation can be smaller as the number of wires and the total weight is distributed
on two poles per circuit rather than two circuits per pole. The cost of building an H-frame structure is similar to the cost of constructing two single-circuit monopoles, which is more than a double-circuit monopole. Usually, these H-type substations are at the roadside. H-type poles are used in substation consisting of transformers, switchgear इक्विपमेंट etc। देखिए रिएक्टिव पावर को निकाला है, यानी इसको एक बार इसको मानकर और एक बार इसको मानकर, तो देखिए आ जाएगा आंसर। A standard hydrogen is an electrode that scientists use for reference on half-cell potential relations. The value of the standard electrode potential is zero. Potential of a chemical will be considered negative if the chemical loses its electron, and the potential of a chemical will be considered positive if chemical accepts the electrons. Hydrogen neither accepts nor loses its electron, hence its electrode potential is zero at all temperatures. Types of pole used in overhead transmission lines: single lattice tower pylon, H pole tangent pole, तीसरा सिंगल पोल टेंजेंट पोल, चौथा डबल पोल टेंजेंट पोल, देखिए ट्रिंगुलर पोल टेंजेंट पोल, टर्मिनल डेड एंड टेंशन पोल, स्टील लेटाइस पोल used for long span crossing, Bailey's rivers, roads, railway lines, etc. H pole tangent pole used for straight alignment in transmission lines commonly used. Single pole tangent pole used for straight alignment where less width is available. Double pole tangent pole used for extra strength and heavy conductor or high voltage lines. Double pole, double tangent pole used for extra strength and heavy conductor high voltage lines. Triangular pole, tangent pole used in areas where side support is required for angle up to 20 से 30 Celsius. Terminal dead end tension pole used at end of line near substation or for sharp angled 30 से बड़ा and for taking high mechanical strength. Type of pole use position angle capacity material. Single H frame structure two pole with cross arm. देखिए कंडक्टर इंसुलेटर क्रॉस आर्म पोल, फ्रंट व्यू, साइड व्यू. Single H frame structure have two poles with a cross arm. These are used for the voltage range of 130 किलोवोल्ट. देखिए पोल हाइट, पोल डायमीटर, कॉस्ट यूजेज, वोल्टेज रेंज. देखिए सिंगल एच फ्रेम टू पोल का यूज अप टू 130 किलोवोल्ट, डबल सर्किट मोनोपोल का यूज 132 से 400 किलोवोल्ट के लिए, सिंगल सर्किट मोनोपोल का यूज 132 किलोवोल्ट तक, एच फ्रेम टू पोल का यूज 130 किलोवोल्ट तक किया जाता है. सब स्टेशन, रोड साइड इंस्टॉलेशन, इंडस्ट्रियल पावर. द सॉल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच कॉल्ड बफर. इसमें देखिए इसे वेक्टर ए वेक्टर बी मानेंगे तथा मॉड ऑफ ए
बी बराबर होता है ए बी कास थीटा, या ए डॉट बी वाले फार्मूला पर हल करके लगा देंगे। नहीं, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कास थीटा। Radiant efficiency of a luminous source depends on temperature of the source. Luminous efficiency. It is also known as radiant efficiency. It is defined as the ratio of energy radiated in form of light that produces a sensation of vision to the total energy radiated out by the luminous body. Radiant efficiency बराबर energy radiated in form of light particle total energy radiated by the body. It depends on the temperature of the source. When an electric temperature is passed through a conductor, some heat is produced to I square R loss, which increases its temperature of the conductor at low temperature. The conductor radiates energy in the form of heat waves, but at very high temperature, radiated energy will be in the form of light as well as heat waves. In the electrical resistance building material of a electrode should have higher electrical conductivity, higher in thermal conductivity, sufficient strength to sustain high pressure at elevated temperatures. Introduction of resistance building. Resistance building process or pressure building process in which heavy current is passed for a short time through the area of interface of metals to be joined. These process differ from other building process in the respect that no fluxes are used and filler metal rarely used. The fundamental principle on which all resistance building is based is as follows. The heat is generated due to the resistance offered by the parts to the passage of heavy electric current for a fraction of a second. The building heat is obtained at the location of the desired yield by the electrical resistance through the metal pieces to relatively short duration low voltage high ampere electric current. In resistance building very high current up to hundred thousand and very low voltage 0.5 to 10 volt is used. Properties of electrical resistance building electrode should have higher electrical conductivity, should have higher thermal conductivity, should sufficient strength to sustain high pressure at elevated temperature, free from corrosion, less temperature coefficient of resistance. Which of the following is not a constituent for making porcelain insulator silica? The most commonly used material for insulator of overhead line is porcelain, but glass, Steatite and special composition materials are also used to limited extent. Porcelain is produced by firing at a high temperature a mixture of kaolin, feldspar and quartz. It is stronger mechanically than glass, gives less trouble from leakage and is less affected by changes in temperature. देखिए, upper electrode working piece, lower electrode. During building, high current passes through the workpiece and heat is generated at the contact point, forming a build nugget. Resistance building. AC supply. Upper electrode workpiece, lower electrode. देखिए, working piece पर two or more metal sheets are placed between the electrodes. High current is passed through electrodes, etc. Divergence operates on a vector field but results in a scalar. Curl operates on a vector field and results in a vector field.
Gradient operates on a scalar but result in a vector field. Divergence of curl of the gradient is always zero. देखिए पिन टाइप इंसुलेटर साइकिल स्पूल पिन इंसुलेटर सेल्वी पिन इंसुलेटर लाइन पोस्ट पिन इंसुलेटर स्टे इंसुलेटर पिन टाइप स्ट्रेन इंसुलेटर पिन टाइप डेड इंसुलेटर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर सस्पेंशन इंसुलेटर डिस्क टाइप लॉन्ग रॉड सस्पेंशन इंसुलेटर डबल सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग सस्पेंशन इंसुलेटर तो देखिए लॉन्ग रॉड सस्पेंशन इंसुलेटर 33 किलोवोल्ट और एवं साइकिल टाइप इंसुलेटर स्टे इंसुलेटर रॉड टाइप अदर स्पेशल पर्पज पोर्सलिन इंसुलेटर स्ट्रेन इंसुलेटर देखिए स्ट्रेन इंसुलेटर डिस्क टाइप लाइन पोस्ट इंसुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन टॉप सपोर्ट इंसुलेटर न्यूट्रल इंसुलेटर ट्रांसफार्मर बूस्टिंग इंसुलेटर स्विच गियर सपोर्ट इंसुलेटर बस बार सपोर्ट इंसुलेटर क्वेश्चन में वेक्टर दिया है यह बराबर एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट डाइवर्जेंस का फार्मूला होता है डेल डॉट एफ बराबर डेल एफ एक्स बटा के डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई बटा के डेल वाई प्लस डेल एफ जेड बटा के डेल जेड अब यहाँ एफ एक्स बराबर एक्स एफ वाई बराबर वाई एफ जेड बराबर जेड फिर देखिए इसलिए डी एक्स बराबर वन डी वाई बराबर वन डी जेड बटा के डी जेड बराबर वन अब सबको ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा आंसर अदर स्पेशल पर्पज पोर्सलिन इंसुलेटर स्ट्रेन इंसुलेटर डिस्क टाइप लाइन पोस्ट इंसुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन टॉप सपोर्ट इंसुलेटर न्यूट्रल इंसुलेटर ट्रांसफार्मर बूस्टिंग इंसुलेटर स्विच गियर सपोर्ट इंसुलेटर बस बार सपोर्ट इंसुलेटर देखिए दिया गया वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जे के है आई की वैल्यू एक्स जे की वैल्यू वाई के की वैल्यू जेड है तो डाइवर्जेंस का फार्मूला होता है डेल वेक्टर एफ बराबर डेल एफ एक्स बटा के डेल एक्स डेल एफ वाई बटा के डेल वाई डेल एफ जेड बटा के डेल जेड अब वैल्यूज रखो सबका मान 1 1 रखेंगे तो 3 आएगा यही आंसर होगा डाइवर्जेंस का यूज यह पता करने में होता है कि किसी पॉइंट से चीज़ें बाहर निकल रही हैं या अंदर जा रही हैं इसे आसान भाषा में फैलाव भी कर सकते हैं अगर किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर फैल रही है तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता है पॉजिटिव चार्ज फील्ड बाहर जाती है नेगेटिव चार्ज फील्ड अंदर आती है गॉस लॉ में इसका बहुत यूज होता है रियल लाइफ एग्जांपल सोचो एक बलून में हवा भर रहे हूँ हवा बाहर की तरफ फैल रही है मतलब डाइवर्जेंस पॉजिटिव अगर बलून की हवा निकालो हवा अंदर से बाहर जा रही है तो फ्लो बनता है देखो के बराबर होता है यम बटा में करड़े में यल 1 यल 2 के का मान देखिए 0.5 से
छोटा होगा तो लूसली कपल्ड होगा। 10.5 से बड़ा होगा तो टाइटली कपल्ड होगा। के का मान 1 होगा तो मैग्नेटिकली टाइटली कपल्ड होगा। विच मटेरियल्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम होता है तो सिरामिक का। एयर का 1, वैक्यूम का 1, ग्लास का 9, पेपर का 2, माइका का 6, सिरामिक का 7,000 होला। What is the set of all values of z for which x of z attain a finite value? Radius of convergence। यह सवाल z ट्रांसफॉर्म से है। सवाल पूछ रहा है ऐसी कौन सी z वैल्यू हैं जिन पर x ऑफ z की वैल्यू सीमित फाइनाइट रहती है। आसान भाषा में मान लो x ऑफ z एक मशीन है। हम उसमें अलग अलग z वैल्यू डालते हैं। कुछ वैल्यू पर मशीन सही आउटपुट देती है, कुछ वैल्यू पर आउटपुट बहुत बड़ा होकर इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए जिन वैल्यू पर आउटपुट सही फाइनाइट मिले उसे रेडियस अथवा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोला जाता है। यहाँ पर आंसर जो है पहला वाला सही होगा। याद रखने का ट्रिक कन्वर्जेंस कंट्रोल में डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस माने फट जाना, इनफाइनाइट हो जाना। जेट ट्रांसफॉर्म द जेट ट्रांसफॉर्म फॉर ए discrete signal x of n is given by x of z बराबर सिग्मा n to infinite बराबर माइनस इनफाइनाइट x of n into z power minus n। The set of all value of z for which x of z attain a finite value is known as region of convergence ROC। ROC does not contain any poles. If x of n is a finite duration causal sequence or right-sided sequence, then R of ROC is entire z-plane except at z बराबर 0। If x of n is finite duration anti-causal sequence or left-sided sequence, then the ROC is the entire z-plane except at z बराबर infinite। During short circuit test of a transformer, core loss are negligible because the voltage applied on primary side is low। 5 से 10% नॉर्मल रेटेड वोल्टेज का। द फ्लक्स सेटअप इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो 5 से 10% of the normal flux। The iron loss of the transformer depends on the flux। Short circuit test। Net field current in a DC compound motor is given by IF net बराबर IF प्लस एन SI बटा के NF इंटू IA। डीसी कंपाउंड मोटर शंट फील्ड, आर्मेचर, सीरीज फील्ड। देखिए F2 A2 A1 यह आर्मेचर है, S1 S2 सीरीज फील्ड है, F1 F2 जो है शंट फील्ड है। A DC motor in which both the shunt winding and series winding are present is known as DC compound motor। If the flux produced by shunt and series winding are additive in nature, then the motor is known as the cumulative compound motor। If the flux produced by shunt and series winding opposes each other, then the motor is known as differential compound motor। Thus, for calculating effective flux, the net field current is found as a flux is proportional to field current। The net field current in a DC compound motor is given by IF net बराबर IF प्लस कोष्टक में एन ऐसे ही बटा के एन एफ इंटू आई ए। फिर आई एफ नेट फील्ड करंट ऑफ कंपाउंड मोटर, आई एफ करंट फ्लोइंग इन फील्ड वाइंडिंग, आई ए करंट फ्लोइंग इन आर्मेचर वाइंडिंग, एन ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स इन आर्मेचर वाइंडिंग, एन एफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द फील्ड वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट।
नेट फील्ड इन ए डीसी कंपाउंड मोटर इज गिवन बाई आई एफ नेट बराबर आई एफ प्लस एन एस आई बटा के एन एफ इंटू आई ए। डीसी कंपाउंड मोटर में नेट फील्ड करंट का मतलब होता है शंट फील्ड प्लस सीरीज फील्ड का टोटल मैग्नेटिक इफेक्ट। आई एफ शंट फील्ड है, आई ए आर्मेचर करंट है, एन एफ शंट फील्ड टर्न्स है, एन एस ए सीरीज फील्ड टर्न्स है। कंपाउंड मोटर में सीरीज वाइंडिंग का इफेक्ट। कम्युलेटिव कंपाउंड ऐड होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए नेट फील्ड करंट का फार्मूला होता है सीरीज वाइंडिंग का टर्न एन एस आई, शंट वाइंडिंग का टर्न एन एफ, इसलिए रेशियो एन एस आई बटे के एन एफ। टार्क डेवलप्ड बाई 3 फेज 400 वोल्ट इंडक्शन मोटर इज 240 न्यूटन मीटर इफ द सप्लाइड वोल्टेज इज reduced to 200 वोल्ट द डेवलप्ड टार्क विल बी हाउ मच 60 न्यूटन मीटर। टार्क इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज गिवन बाई टी बराबर के वी स्क्वायर इंटू आर टू बटे के आर टू का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर। वेयर टी डेवलप्ड टार्क वी सप्लाई वोल्टेज आर टू रोटर रेजिस्टेंस एक्स टू रोटर रिएक्टेंस R2 and X2 are constant for an induction motor. Therefore, developed torque is directly proportional to the square of the supply voltage. T proportional V square इसी पर रख देंगे आंसर आ जाएगा। Overall efficiency of thermal power plant is equal to multiplication of thermal and generation efficiency. Compound motor cumulative, shunt field winding, series field winding, आर्मेचर वाइंडिंग। ये मोटर के पार्ट्स क्या काम करते हैं? शंट फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, शाफ्ट पावर। डीसी कंपाउंड मोटर टाइप CM5। नेम प्लेट मोटर का A charge Q is divided into two parts Q1 and Q minus Q1. What is the ratio of Q बटा के Q1 so that the force between the two parts placed a given distance apart is maximum? दो संबंधी बन देखिए Q है, इसको दो पार्ट में हटा के तो Q1 है, दूसरा Q माइनस Q1 है। अब देखिए मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगा जब दोनों समान दूरी पर हों। देखिए दोनों फार्मूला का फोर्स का फार्मूला हो जाएगा, दोनों पर समान लगेगा बल। देखो ये सब हो जाएगा आई एप्सिलॉन नोट Q1 बटा के आर स्क्वायर बराबर 1/4 नोट Q माइनस Q1 बटा के आर स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा Q1 बराबर Q माइनस Q1, तो यहाँ से 2Q1 बराबर हो जाएगा Q, यानी Q1 बटा के Q बराबर हो जाएगा, यानी Q बटा के Q1 हो जाएगा 2 आ जाएगा। दो संबंध है एक। सवाल The electric potential at the surface of an atom nucleus Z बराबर 50 of radius 9×10⁻⁻15 मीटर। The total charge on a nucleus is given by Q बराबर Z into E, where Q charge, Z atomic number of nucleus, E charge of electron। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज गिवन बाई V बराबर 1/4πε0 Q बटा के R। यहाँ से देखिए जेड ई में जेड तथा ई का मान रख देंगे तो आ जाएगा 8 × 10⁻16 वोल्ट।
फिर आगे जेड इंटू ई से क्यू का मान निकालेंगे, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू घटा के आर कर देंगे, ऐसा आ जाएगा। The electric potential at the surface of an atom nucleus Z बराबर 50 of रेडियस 9 × 10⁻⁻15 मीटर। तो देखिए Q बराबर होता है Z इंटू ई होता है, तो यहाँ से Q का मान निकाल देंगे और फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फार्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा के आर होता है, इसमें रख कर हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। The distance between a projector and a screen is increased by 1%. Illumination on screen will decrease 2%. Illumination is inversely proportional to the distance square। तो देखिए यहाँ से डी ई बटे के ई बराबर 2 गुणे के डेल्टा आर बटा के कैपिटल आर बराबर 2 गुणे के 1%, यानी hence 1% increase in distance will lead to 2% decrease in illumination। The capacity of a spherical conductor is 1 microfarad, then its diameter would be 1 × 10⁻⁴ मीटर। देखिए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। What will happen if two bulb 100 वाट 250 वोल्ट and 200 वाट 250 वोल्ट are connected in series across a 500 लाइन। तो देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले R1 R2 जो कि रेजिस्टेंस मारते हुए दोनों बल्ब का बनाएंगे, और फिर देखिए पावर और वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है, इससे इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों बल्ब का। तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया एक टू का 625 ओम 100 वाट वाले का, और 200 वाट वाले का 312 ओम आ गया। अब देखिए नाउ 500 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द बल्ब बाय यूजिंग द वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब 1 इज, देखिए अब वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे तो V1 का मान देखिए आ जाएगा 333.33 वोल्ट, तथा दूसरे बल्ब के अक्रॉस 166.67 वोल्ट आएगा। देखिए यहाँ पे 250 वोल्ट जो है उससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, अतः जो यही वाला होगा पहला वाला बल्ब 1 फ्यूज हो जाएगा। Each of the following acts as a depolarizer in Lagrange cell MnO2। Lagrange cell, कार्बन रॉड जिंक रॉड, फिर देखिए पोरस पॉट, एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, देखिए मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड, देखिए ग्लास वेसल्स। A Lagrange cell consists of a glass vessel that is filled with aluminum chloride solution. A aluminum chloride solution acts as an electrolyte. In the electrolyte there stand a zinc rod and porous pot containing a carbon rod which is packed around with a mixture of manganese dioxide and powdered carbon. The carbon and zinc rods act as positive and negative electrodes respectively. Explanation: A battery depolarizer takes up electrons during the discharge of the cell and thus it is always an oxidizing agent. The term depolarizer has been used to denote a substance used in the primary cell to prevent the build-up of hydrogen gas bubbles. Manganese dioxide is used as a depolarizer in Lagrange cell and dry cells। आसान भाषा में समझो, Lagrange सेल ड्राई सेल में जब सेल काम करता है तब अंदर हाइड्रोजन गैस बनती है। यह गैस इलेक्ट्रोड पर चिपक जाती है और सेल की शक्ति कम कर देती है। इसे हटाने वाले पदार्थ को डीपोलराइजर कहते हैं। यह MnO2 करता है, इसलिए Lagrange सेल में MnO2 डीपोलराइजर होता है।
लेक्लांसे सेल में कौन क्या काम करता है? जैसे जिंक जो होता है वह नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है, कार्बन रॉड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है, और देखिए NH4Cl जो है कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। MnO2 जो होता है डिपोलराइजर का काम करता है। द यूनिट ऑफ पेल्टर कोफिशिएंट इज J per coulomb, joule per coulomb. Pelter coefficient: the amount of heat energy absorbed or evolved at one of the junctions of a thermocouple when 1 ampere current flow for 1 second is called Pelter coefficient. The unit of Pelter coefficient is joule per coulomb. ऊपर वाले में जो सभी पार्ट के नाम दिए गए हैं आसान भाषा में समझते हैं। सेल का मुख्य भाग जिंक कैन, यह सेल का बाहरी डिब्बा होता है। यह नेगेटिव टर्मिनल होता है। कार्बन रॉड, बीच में लगी काली रॉड, पॉजिटिव टर्मिनल होती है। MnO2 प्लस कार्बन मिक्सचर, यह कार्बन रॉड के आसपास भरा रहता है। यह डिपोलराइजर है। NH4Cl प्लस ZnCl2 पेस्ट, यह इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट होता है, इसी से करंट फ्लो होती है। अब देखिए सेल कैसे काम करता है। स्टेप 1, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। जब हम बैटरी को किसी बल्ब या लोड से जोड़ते हैं, जिंक धीरे धीरे घुलता है और इलेक्ट्रॉन देता है। Zn=Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वायर से होकर बल्ब तक जाते हैं। स्टेप 2, हाइड्रोजन गैस बनने लगती है। सेल के अंदर हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर यह जमा हो जाए तो सेल कमजोर हो जाता है। स्टेप 3, MnO2 गैस हटाता है। MnO2 उस हाइड्रोजन गैस को हटाता है ताकि सेल ठीक से चलता रहे, इसलिए MnO2 को डिपोलराइजर कहते हैं। ओवरऑल रिएक्शन देखिए। देखिए लेग्रांजे सेल, ड्राई सेल, पॉजिटिव टर्मिनल, देखिए ब्रास कैप। अब देखिए कार्बन रॉड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, देखिए MnO2 प्लस कार्बन डिपोलराइजर मिक्सर। अब देखिए NH4Cl प्लस जिंक Cl2 इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट, देखिए पोरस सेपरेटर। अब देखिए जिंक कैन नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इंसुलेटिंग वाशर। ब्रास कैप, कार्बन रॉड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। फिर देखिए MnO2 प्लस कार्बन डिपोलराइजर मिक्सर, देखिए NH4Cl प्लस ZnCl2 इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट, पोरस सेपरेटर, जिंक कैन नेगेटिव इलेक्ट्रोड, प्लस माइनस। देखिए हाउ इट वर्क सेल रिएक्शन, व्हेन सेल सप्लाइज करंट द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। एनोड यानी जिंक, एनोड माने जिंक पे ऑक्सीडेशन अकर्स, जिंक लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स, Zn=Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए एट कैथोड यानी कार्बन पे, कार्बन रॉड पे, कैथोड यानी कार्बन रॉड पे रिडक्शन अकर्स, MnO2 रिमूव द हाइड्रोजन। देखिए MnO2 एक्ट एज डिपोलराइजर बाय रिमूविंग हाइड्रोजन गैस। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज। देखिए देखिए यहाँ से करंट जा रही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन इधर। की पॉइंट, लेग्रांजे सेल ये प्राइमरी सेल, और देखिए ये सब इसका सेल का एमएफ 1.5 लगभग होता है। पेल्टियर कोफिशिएंट क्या होता है? जब दो अलग अलग धातुओं को जोड़कर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट भेजते हैं तो उस जंक्शन पर हीट निकलती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, इसी प्रभाव को पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज पर जितनी हीट पैदा या एब्जॉर्ब होती है उसे पेल्टियर कोफिशिएंट कहते हैं। देखिए पेल्टियर कोफिशिएंट का होता है Q/IT।
कि उत्पन्न आवेश हीट है, आई करंट टी समय है। रियल लाइफ एग्जाम्पल थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर, जो छोटे कूलिंग मॉडल्स होते हैं जैसे मिनी फ्रिज, सीपीयू, वाटर कूलर, इनमें पेल्टियर इफेक्ट इस्तेमाल होता है। करंट देने पर एक साइड ठंडी हो जाती है, दूसरी साइड गर्म हो जाती है। इसका यूनिट जो होता है, विभवांतर का यूनिट जो बोल्ट होता है, बोल्ट ही होता है। In which of the following cells polarization is a major defect? Boltonic cell. Polarization is the major defect found in Boltonic cell. The Boltonic cell has polarization due to ongoing chemical reactions. The chemical action that occurs in the cell while the current is flowing causes hydrogen bubbles to form on the surface on the anode. This action is called polarization. Some hydrogen bubbles rise to the surface of the electrolyte and escape into the air. Some remain on the surface of the anode. If enough bubbles remain around the anode, the bubbles form a barrier that increases internal resistance. When the internal resistance of the cell increases, the output current is decreased and the voltage of the cell also decreases. Daniel cell is an improvement on the voltaic cell using two electrolytes and solves the problem of polarization. Which act is used to regulate Indian power sector in present day? Indian Electricity Act 2003. The act was covers major issues involving the generation, distribution, transmission and trading of power. Which one of the following can act as an inverse transducer? Piezoelectric crystal. The inverse transducer is defined as a device that converts an electrical quantity into a non-electrical quantity. A piezoelectric crystals act as inverse transducer because when a voltage is applied across its surface, it changes its dimensions, causing a mechanical displacement. Note: a piezoelectric sensor is a device that uses the piezoelectric effect to measure the changes in pressure, acceleration, temperature, strain, or force by converting them to an electrical charge. It is used to measure displacement. इनवर्स ट्रांसड्यूसर, जो ट्रांसड्यूसर किसी नॉन इलेक्ट्रिकल भौतिक ऊर्जा को लेकर उसे इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल दे, उसे इनवर्स ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। देखिए, ध्वनि प्रकाश ताप, इनवर्स ट्रांसड्यूसर, वैद्युतिक ऊर्जा, वोल्टेज, करंट, चार्ज, ईटीसी। देखिए, उदाहरण जैसे माइक्रोफोन, भौतिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। देखिए, मिलमैन थ्योरम में देखिए इस प्रकार के सर्किट हो तो उसे एक ठो वोल्टेज सोर्स और एक ठो जो है कि एक ठो सीरीज में रेजिस्टेंस के रूप में बना देते हैं, जिसमें देखिए वोल्टेज सोर्स का मान V बराबर हो जाएगा V1 बटा के R1 प्लस V2 बटा के R2 प्लस V3 बटा के R3 डॉट डॉट बटा के 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और देखिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए करंट सोर्स, जब देखिए इस प्रकार की सर्किट हो तो उसको देखिए एक ठो करंट सोर्स और उसके समांतर में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, तथा यहाँ पे देखिए जो करंट सोर्स का मान होता है वह सभी करंट को जोड़ देंगे तथा रेजिस्टेंस से निकालने के लिए सभी रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे।
ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर C बराबर 100 माइक्रोफैराड थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम अप्लाइड विथ 50 वोल्ट द वोल्टेज एट द टाइम ऑफ द इट इज टाइम कांस्टेंट इज। देखिए सवाल दिया है C बराबर 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। देखिए R बराबर 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम रेजिस्टेंस के जरिए 50 वोल्ट के साथ चार्ज किया गया है। देखिए यहाँ पे 1 किलो ओम लगाया गया है और देखिए यहाँ पे 50 वोल्ट की बैटरी है जिससे चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज करते समय मतलब अब जो है कि जो कैपेसिटर है इसमें इसको हटा दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ से शार्ट किया जा रहा है। ये वाला जो यहाँ पर था इसको देखिए यहाँ पर जोड़ दिया जा रहा है। टाइम कांस्टेंट टाउ पर कैपेसिटर पर वोल्टेज क्या होगा मतलब कि टाउ समय पर जो होगा कैपेसिटर पर वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए जब डिस्चार्ज होने लगेगा मतलब कि यहाँ से ओपन करके यहाँ तक शार्ट कर देंगे तो यह डिस्चार्ज होने लगेगा। और देखिए डिस्चार्ज होने पर जो वोल्टेज होता है उसका फार्मूला होता है। चार्ज होने के बाद कैपेसिटर पर प्रारंभिक वोल्टेज 50 वोल्ट, डिस्चार्ज होने के दौरान वोल्टेज समय के साथ घटता है। वोल्टेज का सूत्र वी ऑफ टी बराबर होता है वी जीरो इंटू ए की पावर माइनस टी बटा के आर सी। वी ऑफ टी समय टी पर वोल्टेज है, वी जीरो प्रारंभिक वोल्टेज यहाँ 50 वोल्ट है, आर रजिस्टेंस ओम में, सी कैपेसिटर, एफ में टी टाइम कांस्टेंट का मान यहाँ पे आर सी होगा। ध्यान दीजिए टाइम कांस्टेंट टाउ पर टी बराबर आर सी रखने पर वी ऑफ टाउ बराबर हो जाएगा क्योंकि टी की जगह पर टाउ का मान रखेंगे वी जीरो ई के पावर माइनस वन यानी वी बटा के ई का मान हम जानते हैं 2.718 होता है। तो अब देखिए जो है कि यहाँ से वी ऑफ टाउ हो जाएगा वी जीरो बटा के 2.718 यानी 18.5 वोल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसी तरह डिस्चार्ज करते समय गिर रहा है ग्राफ। देखिए आर सी पर यहाँ है। सवाल देखिए यहाँ एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, सिस्टम वोल्टेज 11,000 वोल्ट दिया है, टर्न रेशियो 108 दिया है, ट्रांसफार्मर का परसेंटेज वोल्टेज एरर 5% दिया हुआ है। पीटी का सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा। देखिए यहाँ पे फिगर देखिए प्राइमरी, देखिए सेकेंडरी, देखिए लोड। तो टर्न रेशियो को ध्यान रखिए, टर्न रेशियो बराबर होता है के बराबर एन पी बटा के एन एस तथा एन पी बटा के एन एस बराबर वी पी बटा के वी एस। तो यहाँ से निकालेंगे तो सेकेंडरी का वोल्टेज यानी वी एस का मान आ जाएगा 11,000 बटा के 108 यानी 101.85 वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि 5% एरर भी है मतलब कि जो है कि 101 का 100 माइनस 5 यानी 95% हो जाएगा, 96.8 वोल्ट आ जाएगा यानी यही आंसर सही होगा। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर देखिए पीटी एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ये हाई वोल्टेज को कम करके प्रोपोर्शनल लो वोल्टेज में बदलता है ताकि मीटर और प्रोटेक्टिव रिले सुरक्षित रूप से काम कर सके। पीटी वोल्टेज का संबंध देखिए वीपी, आइडियली वीएस का मान देखिए, एक्चुअल में वीएस का मान कम है। देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कनेक्शन इन सब स्टेशन, देखिए पोटेंशियल टर्मिनल बॉक्स, connection point RYB phase terminal connected to high voltage through fuse, neutral terminal connected to system neutral, secondary terminals AN 110 volt output to metering and protection device। कनेक्शन डायग्राम देखिए, कनेक्शन डायग्राम 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट, देखिए RYB देखिए यहाँ पे कनेक्ट हुआ है 110 वोल्ट AC to metering the protection device। How to it work? PT is connected in parallel with the system across phase to neutral. It steps down high voltage. This 110 volt is used for metering, voltmeter, energy meter, and protection relays. Fuses protect the PT from overcurrent. PT location in substation.
देखिए, always PT connected through fuses. A boiler at home is switched on the AC main supply power at 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज. The frequency of instantaneous power consumed is 100 हर्ट्ज हो जाएगा. The instantaneous power has two parts. The first part is constant or time independent. Its value depends on the phase difference between the voltage and the current. The second part is sinusoidal function whose frequency is 2 omega, which is twice the angular frequency of the voltage or current. देखिए, सप्लाई 50 बार प्रति सेकंड डायरेक्शन बदलती है, लेकिन पावर हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसलिए पावर वेव एक सेकंड में 100 बार ऊपर नीचे होती है. फॉर ए थ्री फेज सिस्टम कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इन वोल्ट ऑफ फेज वाई इफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ अदर टू फेजेज आर प्लस 70 वोल्ट एंड माइनस 50 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. फॉर ए थ्री फेज सिस्टम सम ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आर इक्वल टू जीरो. यानी देखिए, वी वाई का मान वी वाई प्लस 70 माइनस 50 बराबर शून्य, यानी वी वाई का मान माइनस 20 वोल्ट होगा. Which of the following diodes is also known as a hot carrier diode? Schottky डायोड. स्कॉटकी डायोड को हॉट कैरियर डायोड कहा जाता है. यह डायोड बहुत तेज स्विचिंग करता है, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है. एसएमपीएस हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट और फास्ट स्विचिंग में उपयोग किया जाता है. देखिए, स्कॉटकी डायोड को हॉट कैरियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें करंट फ्लो कराने वाले चार्ज कैरियर बहुत तेज ऊर्जा वाले होते हैं. सामान्य पीएन डायोड में करंट फ्लो में इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों काम करते हैं, इसलिए स्विचिंग थोड़ी स्लो होती है. स्कॉटकी डायोड में केवल मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराते हैं. ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से चलते हैं. हाई एनर्जी वाले कैरियर को हॉट कैरियर बोला जाता है. इसकी खास बातें: फास्ट स्विचिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.3 वोल्ट, हीट कम बनती है, एसएमपीएस और हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट में उपयोग किया जाता है. देखिए, बैरेक्टर डायोड फिगर. यह बैरी कैप के रूप में काम करता है. इसकी कैपेसिटेंस रिवर्स बायस वोल्टेज के अनुसार बदलती है. मुख्य उपयोग ट्यूनिंग सर्किट, वीसीओ आदि में. पीएन डायोड फिगर. यह सबसे सामान्य डायोड है, करंट को एक दिशा में प्रवाहित करता है. मुख्य उपयोग रेक्टिफायर, स्विचिंग आदि में. स्कॉटकी डायोड, इसे हॉट कैरियर डायोड कहा जाता है. यह मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड होता है. मुख्य उपयोग हाई स्पीड स्विचिंग, लो वोल्टेज ड्रॉप, एसएमपीएस आदि में. एलईडी, यह प्रकाश को उत्सर्जित करता है. जब इसमें करंट प्रवाहित होता है तो मुख्य उपयोग इंडिकेशन डिस्प्ले, लाइटिंग में आदि में. A factory runs in two shifts of 12 hours each, in which it consumes 30 kilowatt and 25 kilowatt in each shift respectively. Calculate the energy in kilowatt hour consumed by factory per day. देखिए, गुणा करके जोड़ देंगे 660 आ जाएगा. पीएन डायोड सिंबल, पीएन जंक्शन. फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए. रेक्टिफाइज एसी टू डीसी, हैंडल्स मॉडरेट करंट एंड वोल्टेज. एप्लीकेशन रेक्टिफायर सर्किट, पावर सप्लाई, जनरल पर्पज. जनरल पर्पज डायोड सबसे सामान्य डायोड है. स्कॉटकी डायोड, हॉट कैरियर डायोड. देखिए फिगर, देखिए मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, मेटल प्लस एन टाइप. देखिए, वेरी लो फॉरवर्ड ड्रॉप 0.2 से 0.3 वोल्ट.
वेरी फास्ट स्विचिंग, लो पावर लॉस, एसएमपीएस हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट, डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स, रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन, हॉट कैरियर डायोड, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी से जल्दी कंडक्शन करते हैं। वो देखिए, जेनर डायोड, जेनर डायोड सिंबल देखिए, हैवी डोप्ड पीएन जंक्शन, पी प्लस देखिए एन, ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, मेंटेन्स नियरली कांस्टेंट वोल्टेज, जेनर डायोड, VGE फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेशन में, वोल्टेज रेफरेंस में, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में, क्लिपिंग क्लैपिंग में, जेनर स्पेसिफाइड वोल्टेज डायोड रिवर्स बायस में निश्चित वोल्टेज पर ब्रेकडाउन करता है। अब देखिए, एलईडी फिगर देखिए, पीएन जंक्शन ऑफ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, देखिए एमिट्स लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड, लो वोल्टेज 1.8 से 3.3 वोल्ट टिपिकल, डिफरेंट कलर्स वेरिएबल, इंडिकेशन में, डिस्प्ले में, लाइटिंग में, साइन बोर्ड में, लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस में प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब देखिए फोटो डायोड, पीएन जंक्शन इन लाइट सेंसिटिव पैकेज, अब देखिए वर्क्स इन रिवर्स बायस, लाइट फॉलिंग करंट इंक्रीजेज फास्ट सेंसिटिव, लाइट सेंसिंग ऑप्टिकल फाइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स, कैमरा इंस्ट्रूमेंट्स, देखिए प्रकाश डायोड प्रकाश मिलने पर करंट उत्पन्न करता है। अब देखिए लाइट डायोड एंड लेजर डायोड, सिंबल देखिए लेजर डायोड का, पीएन जंक्शन इन एक्टिव लेयर्स, लेसर कैविटी, प्रोड्यूसेस कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लेसर लाइट, वेरी नैरो बीम हाई स्पीड, लेजर प्रिंटर्स ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सीडी डीवीडी प्लेयर्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, लेजर डायोड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से कोहेरेंट लाइट देता है। अब देखिए बायरेक्टर डायोड, बैरिकैप ट्यूनिंग डायोड, एनोड कैथोड, पीएन जंक्शन वर्क्स एज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर, capacitance changes with reverse bias voltage used in high frequency circuit, देखिए आरएफ ट्यूनिंग ऑक्सीलेटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पीसीओ वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड रिवर्स बायस बदलने पर कैपेसिटेंस बदलती है। बैरेक्टर ट्यूनिंग डायोड, एनोड कैथोड, heavily doped पीएन जंक्शन, वेरी थिन डिप्लीशन लेयर, देखिए सो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, वेरी फास्ट स्विचिंग, लो वोल्टेज ऑपरेशन, माइक्रोवेव सर्किट ऑक्सीलेटर, फास्ट स्विचिंग सर्किट, टनल डायोड क्वांटम टनलिंग इफेक्ट से करंट फ्लो करता है। अब देखिए पिन डायोड, एनोड कैथोड, पी इंट्रिंसिक तथा एन स्ट्रक्चर, वाइड डिप्लेशन रीजन, लो कैपेसिटेंस, गुड एट हाई फ्रीक्वेंसी, आरएफ स्विचेज एट्यूनेटर्स में, फोटो डिटेक्टर में,
पी आयन डायोड पी और एन के बीच में इंट्रिंसिक लेयर होती है। स्टेप रिकवरी डायोड एसआर डायोड स्पेशल पीएन जंक्शन विथ गोल्ड प्लेटिनम डोपिंग। वेरी फास्ट रिवर्स रिकवरी लो स्टोर्ड चार्ज हाई एफिशिएंसी एसएमपीएस हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स फ्री व्हीलिंग डायोड स्टेप रिकवरी डायोड रिवर्स रिकवरी स्टेप में होती है, बहुत तेज होती है। डायोड बेसिक्स याद रखें। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायस लीकेज करंट फॉरवर्ड बायस कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन बैक डाउन जेनर। डायोड सिलेक्शन गाइड हाई स्पीड लो लॉस के लिए शॉटकी वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जेनर लाइट एमिशन के लिए एलईडी लेसर लाइट डिटेक्शन के लिए फोटो डायोड हाई फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग के लिए बैरेक्टर डायोड माइक्रोवेव स्विचिंग के लिए पिन डायोड। देखिए फास्ट स्विचिंग के लिए एस आर डायोड। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑलवेज कनेक्ट डायोड इन करेक्ट पोलरिटी एक्सीडिंग रीडिंग रेटिंग में डैमेज डायोड चेक करंट आई एफ वोल्टेज वी आर पावर पी फॉर एसी टू डीसी यूज पिन डायोड फॉर रेगुलेशन यूज जेनर डायोड। देखिए देखिए चूंकि यहाँ पे जो आयरन लॉस है और कापर लॉस है दोनों 200 वाट है यानी बराबर है। अतः देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड पर प्राप्त होगा। यानी देखिए तो यहाँ से जो होगा आउटपुट पावर जो होगा वह 4 kVA होगा यानी 4000 वोल्ट एम्पियर होगा। मतलब कि 4000 देखिए आउटपुट होगा तथा इसमें लॉस जो हो रहा है 200 यानी 400 हो रहा है। यानी इनपुट पावर जो होगा 4400 होगा तथा आउटपुट 4000 होगा। देखिए इसका परसेंटेज निकाल देंगे तो 90.9% आ जाएगा। देखिए यहाँ से आउटपुट पावर निकालने के लिए जो केवीए दिया हुआ है फुल लोड उसमें पावर फैक्टर का गुणा कर देंगे। पावर फैक्टर दिया हुआ है 1 तो यहाँ पे 4000 वाट आ गया है। ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होती है जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है। यहाँ दोनों पहले से बराबर हैं इसलिए मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड पर होगी। ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने का देखिए द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज गिवन बाई ईटा बराबर एक्स इंटू के बी ए कास फाइव बटे के एक्स के बी ए कास फाइव प्लस पी सी प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू फुल लोड। देखिए वेर एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग कास फाइव जो है पावर फैक्टर पी सी। देखिए एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग है पी सी आयरन लॉस पी सी यू फुल लोड कापर लॉस। और देखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी देखिए यहाँ देखिए दिया हुआ है जो ट्रांसफार्मर है वो 4 किलोवाट का है पावर। ठीक है इनपुट वोल्टेज जो दिया हुआ है वो 100 वोल्ट दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पी में यदि 100 से भाग कर देंगे तो प्राइमरी करंट 40 एम्पियर का निकल जाएगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले ट्रांसफार्मर बनाएंगे। देखिए दिया हुआ ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो है एक संबंध है 5 है। यानी कि प्राइमरी यहाँ देखिए एक यूनिट होगा टर्न तो सेकेंडरी यहाँ 5 यूनिट होगा। और बोला कि सेकेंडरी साइड जो है कि 500 ओम से कनेक्ट है
अब देखिए इसको रजिस्टेंस को प्राइमरी साइड यदि रेफर करना है, देखिए सेकेंडरी साइड से उठाएंगे और प्राइमरी साइड में करेंगे, तो देखिए 500 आएगा। और देखिए जब सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो सेकेंडरी साइड का जो टर्न का जो यूनिट है उसके स्क्वायर करके जो कि इसमें भाग लगा देंगे, यानी 25 का भाग कर देंगे, तो आ जाएगा 20 ओम। सबसे पहले याद रखो ई बराबर पी फाइव जेड एन बटा के 60 है। यहीं से देखिए ई प्रोपोर्शनल फाई एन होता है, मतलब कि जो ईएमएफ होता है, चाहे बैक ईएमएफ हो अथवा जनरेटेड ईएमएफ हो, फाई तथा स्पीड के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बैक ईएमएफ अथवा जनरेटेड ईएमएफ हमेशा फाई तथा एन के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए पूरा सवाल लग जाएगा। जनरेटर में यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ का मान हो जाएगा ईजी का मान 210 वोल्ट, तथा देखिए मतलब जनरेट कर रहा है जनरेटर 210 वोल्ट और टर्मिनल पर वोल्टेज है 200 वोल्ट, और उसी 200 वोल्ट को मोटर के सप्लाई पर दे दिया जा रहा है। तो देखिए जो मोटर में बैक ईएमएफ है वह 190 वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए डीसी मशीन में ईएमएफ और स्पीड में रिलेशन, मतलब कि ईएमएफ बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। यहाँ से देखिए इसको निकाल सकते हैं, यानी मोटर का स्पीड बटा के जनरेटर का स्पीड बराबर मोटर का बैक ईएमएफ बटे के जनरेटर का बैक ईएमएफ गुणे के जनरेटर का फ्लक्स बटे के मोटर का फ्लक्स। अब देखिए मोटर और जनरेटर के स्पीड का रेशियो 190 बटा के 210 गुणे के 1.2, यानी लगभग 0.75 आ गया है। देखिए सवाल को लगाया गया है आसानी से। DC generator used for voltage drop compensation is known as series. Application of DC series generator used for supplying field excitation current in DC locomotive for regenerative braking. Used as a booster to compensate for the voltage drop in the feeder in various type of distribution systems such as railway services used in series arc lighting. Application of DC shunt generator used for general lighting, used to change the battery because they can be made to give constant output voltage, used for giving excitation to the alternators. Identify the control signal are operated by the timing and control unit of 8051 microcontroller in order to access the off-chip devices apart from the internal timing. ALE, PSEN, RD, W are all of the above correct. There are three control signals EA, PSEN and ALE. These signals are known as external access. EA program store enable, PSEN and address latch enable, ALE are used for external memory interfacing. पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखिए पिन 29, दिस इज द PSEN पिन विच स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम स्टोर इनेबल। इट इज यूज्ड टू रीड ए सिग्नल फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। पिन 30, दिस इज द EA पिन which stands for external access input. It is used to enable disable the external memory interfacing. Pin 31, this is the ALE pin which stands for address latch enable. It is used to demultiplex the address data signal of the port. तो ये वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन, जब लंबी डीसी लाइन में करंट बहता है, तार में रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप होता है। भी ड्रॉप बराबर IR, लोड तक कम वोल्टेज पहुंचता है। अब सीरीज जनरेटर क्या करता है, सीरीज जनरेटर को लाइन में सीरीज में जोड़ देते हैं,
या एक्स्ट्रा वोल्टेज जोड़ता है। जैसे देखिए अब वी लोड बराबर हो जाएगा वी एस माइनस आई आर प्लस ई जी। जो वोल्टेज रास्ते में गिर गया था सीरीज जनरेटर उसे वापस जोड़ देता है, इसीलिए इसे वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेटर बोला जाता है। इसका उपयोग डीसी फीडर्स में, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, ट्रॉली सिस्टम में, पुरानी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में होता है। देखिए यहाँ पे सीरीज जनरेटर का कनेक्शन, डीसी सप्लाई पॉजिटिव माइनस आईएल करंट फ्लो हो रही है। देखिए यहाँ पे प्लस जनरेटर का और माइनस जनरेटर का सिरा दोनों का जोड़ा गया है सीरीज में। देखिए यहाँ पर लोड जोड़ा गया है वीएल। सीरीज जनरेटर हमेशा लाइन में सीरीज में जोड़ा जाता है। देखिए बिना सीरीज जनरेटर के और देखिए सीरीज जनरेटर के साथ कंपनसेटेड ग्राफ, लोड करंट आईएल तथा टर्मिनल वोल्टेज वीएल बराबर वीएस माइनस आईएल आरएल लाइन ड्रॉप। लेकिन सीरीज जनरेटर ईजी जोड़ देता है तब वीएल न्यू बराबर, देखिए वीएस सप्लाई वोल्टेज, आईएल लोड करंट, आरएल लाइन रेजिस्टेंस, ईजी सीरीज जनरेटर का जनरेटेड वोल्टेज। सीरीज जनरेटर क्यों उपयोग करते हैं? लोड बढ़ने पर वोल्टेज गिरने नहीं देता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या है? एक छोटा कंप्यूटर चिप है। मेमोरी पढ़ता है, डाटा भेजता है, डिवाइसेस कंट्रोल करता है। कभी कभी 8051 को बाहर की मेमोरी डिवाइस से बात करनी पड़ती है, इसके लिए ये सिग्नल उपयोग होते हैं। ALE एड्रेस लैच इनेबल, एड्रेस को अलग करने के लिए। 8051 में एड्रेसेस और डाटा एक ही लाइन पर आते हैं। ALE सिग्नल कहता है अभी एड्रेस आया है, इसे पकड़ लो। आसान उदाहरण जैसे टीचर बोले पहले रोल नंबर लिख लो। देखिए PSEN प्रोग्राम स्टोर इनेबल, एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी पढ़ने के लिए। जब 8051 बाहर की रोम से प्रोग्राम पढ़ता है तब यह सिग्नल एक्टिव होता है। याद रखो PSEN प्रोग्राम पढ़ना। RDWR ये डेटा मेमोरी के लिए उपयोग होते हैं। RD रीड बाहर से डाटा पढ़ो, WR राइट बाहर डाटा लिखो। ALE एड्रेस पकड़ना, PSEN प्रोग्राम पढ़ना, RD डाटा पढ़ना, WR डाटा लिखना। आसान उदाहरण, मान लो कुरियर वाला घर नंबर और सामान दोनों साथ बोल दे। पहले घर नंबर अलग पकड़ना पड़ेगा। वैसे ही 8051 में एड्रेस डाटा एक ही लाइन से आते हैं। ALE कहता है कि अभी एड्रेस आया, इसे पकड़ लो। अब देखिए PSEN सिग्नल, जैसे स्टूडेंट लाइब्रेरी से बुक पढ़ता है वैसे ही 8051 एक्सटर्नल रूम से प्रोग्राम पढ़ता है, तब PSEN सिग्नल ऑन होता है। RD बाहर से डाटा पढ़ो, एग्जाम्पल सेंसर का डाटा लेना। WR राइट बाहर डाटा भेजो, एग्जाम्पल डिस्प्ले पर डाटा भेजना। आसान ट्रिक, ALE एड्रेस पकड़ो, PSEN प्रोग्राम पढ़ो, RD डाटा पढ़ो, WR डाटा लिखो। सवाल पूछ रहा है कि ऑफ चिप डिवाइसेस एक्सेस करने के लिए कौन सिग्नल उपयोगी होता है? ALE भी, PSEN भी, RD तथा WR भी, यानी चारों ऑप्शन सही। RISC स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर concept. RISC reduced instruction set computer is a microprocessor that is designed to perform a smaller number of instructions so that it can operate faster. RISC instruction set are simple. RISC instruction takes only one clock cycle per instruction to execute. Explanation: RISC is implemented using hardware control unit. RISC uses register instead of memory. Registers are small in size and are on the same chip on which ALU and control unit are present. RISC architecture is shown below. This is hardwired control unit, data path, data cache, instruction cache, main memory. Feature of RISC processor are: RISC instruction sets
are simple and of fixed size. Favor instruction in RISC, high performance, simple addressing modes, a large number of registers. Instruction come under size of one word. ये 80-51 माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल सिग्नल्स देखिए 80-51 MCU ALA PSEN RD WR देखिए ALA एड्रेस लैच इनेबल 80-51 ट्रेनर किट रेडी 80-51 माइक्रो कंट्रोलर RISC का पूरा नाम रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। आसान भाषा में समझो। RISC एक ऐसा प्रोसेसर डिजाइन है जिसमें इंस्ट्रक्शन कम होते हैं, इंस्ट्रक्शंस आसान होते हैं, कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। रियल लाइफ एग्जांपल CISC प्रोसेसर एक आदमी खाना बनाना, पैकिंग करना, डिलीवरी सब कुछ खुद कर रहा है। काम कॉम्प्लेक्स और स्लो होगा इस वजह से। बट देखिए RISC प्रोसेसर हर आदमी एक छोटा सिंपल काम करता है। एक सिर्फ कटिंग, एक कुकिंग, एक पैकिंग। काम जल्दी होगा। RISC की खास बातें देखिए सिंपल इंस्ट्रक्शन, आसान कमांड्स, फास्ट एग्जीक्यूशन, जल्दी काम करना। वन क्लॉक साइकिल मतलब जल्दी इंस्ट्रक्शन पूरा करना, कम पावर बैटरी बचाना। मतलब कि RISC प्रोसेसर में हर एक काम अलग अलग जैसे होता है। इसका उपयोग होता है मोबाइल फ़ोन्स में, ARM प्रोसेसर्स में, टैबलेट में, एम्बेडेड सिस्टम्स में, मॉडर्न माइक्रोकंट्रोलर्स में। CISC बनाम RISC आसान कंपैरिजन। RISC कम इंस्ट्रक्शन, CISC ज़्यादा इंस्ट्रक्शन। RISC फास्ट, CISC थोड़ा स्लो। RISC सिंपल, CISC कॉम्प्लेक्स। RISC कम पावर, CISC ज़्यादा पावर। How many bytes of its addressable memory is present in 8051 based microcontrollers? 16 bytes. 8051 is an 8-bit microcontroller built with 40 pins DIP dual inline package. 8051 has internal RAM 128 byte and ROM 4K bytes. Of the 128 byte terminal RAM, only 16 bytes are a bit addressable. The rest must be accessed in byte format. Note: the block diagram of an ASIC microcontroller is as shown. देखिए एक्सटर्नल इंटरप्ट कंट्रोल, फिर देखिए CPU, ऑक्सीलेटर, 4K फ्लैश, 128 रैम, बस कंट्रोल, 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट, एड्रेस डाटा, टाइमर 1, टाइमर 0, काउंटर इनपुट, बस कंट्रोल। इन एन 8051 माइक्रोकंट्रोलर इंटरनल रैम डाटा मेमोरी 128 बाइट्स, इंटरनल मेमोरी कोड मेमोरी 4 KB रोम, टाइमर काउंटर 2 ठो, नंबर ऑफ इंटरप्ट 5 ठो, इनपुट बटे आउटपुट पिन्स 32 ठो, सीरियल पोर्ट 1 ठो एगो। CISC बनाम RISC आसान तुलना देखिए फीचर फुल फॉर्म कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर RISC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देखिए जटिल और ज़्यादा जटिल, एक काम करने के कई तरीके। RISC कम और आसान, एक काम करने का एक ही तरीका। इंस्ट्रक्शन साइज अलग अलग वेरिएबल तथा RISC में फिक्स्ड समान। एड्रेसिंग मोड्स देखिए CISC में ज़्यादा, RISC में कम। एग्जीक्यूशन टाइम देखिए CISC में मल्टी साइकिल कई क्लॉक साइकिल्स में, RISC में सिंगल साइकिल एक क्लॉक साइकिल में। रजिस्टर देखिए कम, रजिस्टर CISC में रजिस्टर कम यूज होते हैं तथा RISC में ज़्यादा यूज होते हैं।
कंट्रोल यूनिट की बात करें तो CISC का कॉम्प्लेक्स जटिल होता है, RISC का सिंपल आसान होता है। मेमोरी एक्सेस की बात करें तो CISC मेमोरी से सीधे भी काम कर सकता है तथा RISC मेमोरी से सीधे काम नहीं करता, पहले रजिस्टर में लाता है। अब देखिए पावर कंजप्शन CISC में ज़्यादा होता है, RISC में कम होता है। एग्जाम्पल्स देखिए CISC का इंटेल 8086, 80 286, 80 386, 80 486 पेंटियम। RISC में देखिए आर्म, MIPS मिप्स, RISC ESPARC स्पार्स। CISC प्रोसेसर इंटेल 8086 फिजिकल इमेज, RISC प्रोसेसर आर्म कोर्टेक्स M3 फिजिकल इमेज। देखिए माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है, कैलकुलेशन करता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जैसे इंसान का दिमाग चलता है उसी तरह सोचना, फैसला लेना, शरीर को कंट्रोल करना। वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर डाटा प्रोसेस करता है, कमांड्स एग्जीक्यूट करता है, डिवाइसेस कंट्रोल करता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या करता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, मेमोरी कंट्रोल, इनपुट आउटपुट कंट्रोल। देखिए माइक्रो प्रोसेसर के अंदर के मुख्य भाग ALU जो कैलकुलेशन करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, रजिस्टर्स टेम्पररी डाटा स्टोर करता है। अब देखिए कहाँ उपयोग होता है? कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, ATM में, वॉशिंग मशीन में, कार इलेक्ट्रॉनिक्स में। देखिए आसान स्ट्रक्चर, इनपुट माइक्रो प्रोसेसर में जाता है, फिर आउटपुट प्राप्त होता है। उदाहरण कीबोर्ड से हम लोग इनपुट देते हैं, फिर CPU जो कि माइक्रो प्रोसेसर होता है, और उसके बाद मॉनिटर पर आउटपुट प्राप्त होता है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस। माइक्रो प्रोसेसर CPU सिर्फ, माइक्रो कंट्रोलर में देखिए CPU रैम रोम तीनों आ जाएंगे। देखिए माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में, माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम में। माइक्रो प्रोसेसर के एग्जाम्पल इंटेल पेंटियम, इंटेल i3, इंटेल i5, इंटेल 7, AMD राइजन, आर्म प्रोसेसर्स। 8051 में मेमोरी होती है। मान लो 8051 के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में डाटा रखा रहता है, इन्हें मेमोरी कहते हैं। बाइट कहता है 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, मतलब एक बॉक्स के अंदर 8 छोटे चिप्स होते हैं। जैसे बिट 7, बिट 6, बिट 5, बिट 4, बिट 3, बिट 2, बिट 1, बिट 0। बिट एड्रेसेबल मतलब अगर हम पूरे बाइट को कंट्रोल करें नॉर्मल एक्सेस, लेकिन अगर सिर्फ एक सिंगल बिट को कंट्रोल करें तो उसे बिट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। आसान एग्जांपल, मान लो 8 बल्ब लगे हैं, बाइट एक्सेस सारे बल्ब एक साथ ऑन ऑफ होंगे, तथा बिट एक्सेस मतलब सिर्फ एक बल्ब ऑन ऑफ होगा, यही बिट एड्रेसिंग है। और 8051 में क्या है? 8051 की टोटल रैम 128 बाइट्स, लेकिन इनमें से 16 बाइट्स ऐसी मेमोरी है जहाँ हर बिट को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आंसर 16 बाइट्स सबसे आसान है। 8051 में टोटल रैम 128 बाइट्स, बिट एड्रेसेबल 16 बाइट्स। देखिए कहाँ उपयोग होता है? जब हमें एलईडी कंट्रोल करना हो, स्विच स्टेटस कंट्रोल करना हो, फ्लैग ऑन ऑफ जैसे छोटे काम करने हो वहाँ पे। हाउ मेनी 16 बिट टाइमर्स काउंटर्स प्रेजेंट इन 8051 microcontroller? 8051 microcontroller consist of four register banks such as bank 0, bank 1, bank 2, bank 3, which are selected by the PSW program status word register. 8051 has 32 general purpose registers and the size of each register is 8 bits. It has two 16-bit registers and they are the data pointer DTPR and the program computer PC. The block diagram of an SCAM microcontroller is shown. External interrupts.
interrupt control, 4K flash, RAM, timer 1, timer 2, counter input, CPU, accelerator, bus control, her input output port, serial bus port, address data. In an ASIC microcontroller, internal RAM data memory 128 bytes, internal memory code memory 4 KB, timer counter 2 ठो, number of interrupt 5 ठो, इनपुट आउटपुट पिन 32 ठो, सीरियल पोर्ट 1। ASIC माइक्रो कंट्रोलर क्या है? ये छोटा कंप्यूटर चिप है, कैलकुलेशन करता है, मेमोरी संभालता है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल करता है। रजिस्टर बैंक क्या होता है? 80 51 में 4 रजिस्टर बैंक होते हैं, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर छोटा बहुत फास्ट मेमोरी बॉक्स जहाँ सीपीयू थोड़ी देर के लिए डाटा रखता है। पीएसडब्ल्यू रजिस्टर क्या करता है? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड यह डिसाइड करता है कौन सा रजिस्टर बैंक उपयोग होगा। जनरल पर्पज रजिस्टर 80 51 में 32 रजिस्टर होते हैं और हर रजिस्टर 8 बिट का होता है, मतलब एक रजिस्टर में 8 बिट डाटा स्टोर हो सकता है। दो स्पेशल 16 बिट रजिस्टर डीपीटीआर डाटा काउंटर या मेमोरी एड्रेस को पकड़ने के लिए उपयोग होता है। पीसी प्रोग्राम काउंटर यह बताता है अगला इंस्ट्रक्शन कहाँ, यानी प्रोग्राम कहाँ चल रहा है। अब ब्लैक डायग्राम समझो। सीपीयू या एसपी 51 का ब्रेन है, सारे कैलकुलेशन करता है। 4K फ्लैश यह परमानेंट मेमोरी है, यहाँ प्रोग्राम स्टोर रहता है। 128 रैम है, यह टेम्पररी मेमोरी है, काम करते समय डाटा यहाँ रहता है। टाइमर 0 और टाइमर 1 समय गिनने के लिए। सीरियल पोर्ट डाटा भेजने और लेने के लिए। इनपुट आउटपुट पोर्ट 80 51 में 32 पिन रहती है, इनसे एलईडी मोटर स्विच जोड़ सकते हैं। नीचे दिए गए पॉइंट फीचर रैम 128 बाइट्स, रोम फ्लैश 4 केबी, टाइमर 2 ठो, इंटरप्ट 5 ठो, इनपुट आउटपुट पिन 32 ठो, सीरियल पोर्ट 1 ठो। देखिए 80 51 के अंदर सीपीयू, रैम, रोम, टाइमर, पोर्ट्स, सीरियल कम्युनिकेशन सब बिल्ट इन मिलता है, इसलिए 80 51 कंप्लीट स्मॉल कंप्यूटर चिप है। A sensor that can be used for detecting the presence of objects surrounding it without having any physical contact is termed as proximity sensor. Different types of sensor. Proximity sensor. Proximity sensor. A proximity sensor is a sensor that is able to detect the presence of nearby objects without any physical contact. Sound, light, infrared radiation, or electromagnetic fields are used as the source for the detection of objects. The two most commonly used proximity sensors are the inductive proximity sensor and the capacitive proximity sensor. Proximity sensors are used in phones, recycling plants, self-driving cars, anti-aircraft systems, and assembly lines. Current sensor. A current sensor is a device that detects and converts current to an easily measurable output voltage which is proportional to the current through the measured path. Current sensors are used in battery life indicator and charger, DC to DC converters, ground fault detectors, and SMPS. Voltage sensor. A voltage sensor is a sensor used to calculate and monitor the amount of voltage in an object. The input of this sensor is the voltage, whereas the output can be an analog voltage signal, a current signal, or an audio signal. They can be used in navigation equipment, industrial applications, or scientific measurement. Frequency sensor. A frequency domain sensor is an instrument developed for measuring soil moisture content. The instrument has an accelerating circuit. The sensing part of the sensor is embedded in the soil, and the operating frequency will depend on the value of the soil's dielectric constant. Pressure regulator reduce and control.
control fluid pressure in compressed air systems. Pressure regulator. It is a device that controls the pressure of liquids or gaseous medium by reducing a high input pressure to control lower output pressure. They also work to maintain a constant output pressure even when there are fluctuations in the inlet pressure. A typical pressure regulator consists of the following elements: a pressure reducing element such as a poppet valve, a loading element to apply the necessary force to the reducing element such as a spring piston actuator or diaphragm actuator, a sensing element such as a diaphragm or piston membrane inlet, with a manual pressure adjustment outlet, pocket valve. देखिए, करंट सेंसर या धारा करंट को मापता है और उसका आउटपुट वोल्टेज देता है। वोल्टेज सेंसर या वोल्टेज को मापता है और उसका आउटपुट देता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर यह बिना किसी भौतिक संपर्क के पास आने वाली वस्तु ऑब्जेक्ट की उपस्थिति का पता लगाता है। देखिए, फ्रीक्वेंसी सेंसर यह फ्रीक्वेंसी को मापता है और उसका आउटपुट देता है। प्रेशर रेगुलेटर एक डिवाइस है जो ज़्यादा प्रेशर को कम और स्टेबल करता है। कम प्रेशर से बहुत तेज हवा आती है लेकिन मशीन को कम प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर रेगुलेटर प्रेशर को कंट्रोल करता है। देखिए, घर की पानी की टंकी सोचो, अगर ज़्यादा प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो पाइप फट सकता है, लीकेज हो सकता है। इसलिए रेगुलेटर प्रेशर को सेफ रखता है। देखिए, इसका काम हाई प्रेशर कम करना, कांस्टेंट प्रेशर देना, मशीन को सेफ रखना। इसके मुख्य पार्ट स्प्रिंग प्रेशर सेट करता है, डायाफ्राम मेम्ब्रेन प्रेशर महसूस करता है, वाल्व हवा गैस फ्लो कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग करते हैं एयर कंप्रेसर में, न्यूमेटिक सिस्टम में, गैस सिलेंडर में, वेल्डिंग सिस्टम में, इंडस्ट्रियल मशीन में। इल्यूमिनेशन बराबर ल्यूमिनस फ्लक्स बटा के एरिया। प्रेशर रेगुलेटर फिजिकल इमेज देखिए, फ्रंट व्यू, एडजस्टमेंट नोब, आउटलेट इनलेट प्रेशर गेज। साइड व्यू, इनसाइड व्यू कट सेक्शन, एडजस्टिंग नोब, स्प्रिंग डायाफ्राम, वाल्व स्टीम पॉकेट वाल्व, आउटलेट इनलेट। रियल वर्ल्ड इमेज इंस्टॉल्ड, वर्किंग हाउ इट कंट्रोल प्रेशर। देखिए, हाई इनलेट प्रेशर वाल्व ओपन्स मोर, लो इनलेट प्रेशर वाल्व क्लोज मोर, एयर कंप्रेसर देखिए ईटीसी। हाई प्रेशर फ्रॉम इनलेट कंट्रोल्ड आउटलेट प्रेशर, लो प्रेशर फ्रॉम इनलेट कंट्रोल्ड आउटलेट प्रेशर। देखिए इसका इमेज। देखिए, रूम का जो एरिया है वह 4 मीटर 3 मीटर यानी हो जाएगा 4×3 12 मीटर स्क्वायर एरिया। अब देखिए, लाइट सोर्स लैंप, एक लैंप है जिसका 300 ल्यूमेन आउटपुट है। अब देखिए, इल्यूमिनेंस लक्स, लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर यानी 50 लक्स बराबर 50 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, मतलब हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 50 ल्यूमेन लाइट चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे 50 लक्स। कैलकुलेशन देखिए, स्टेप 1, रूम का एरिया जो है कि 4×3 12 मीटर स्क्वायर। स्टेप 2, टोटल ल्यूमेन रिक्वायर्ड। देखिए, टोटल ल्यूमेन्स रिक्वायर्ड लक्स गुणे के एरिया यानी 50×12 बोले तो 600 लक्स। स्टेप 3, नंबर ऑफ लैंप बराबर टोटल ल्यूमेन्स बटा के ल्यूमेन्स पर लैंप्स यानी 600 बटा के 300 यानी 2 ठो लैंप की आवश्यकता होगी। रिजल्ट 2 लैंप लगेंगे, एक ठो यहाँ पे एक ठो यहाँ पे। देखिए, प्रेफर यूनिट्स ल्यूमेन, लाइट आउटपुट ऑफ ए लैंप, टोटल लाइट प्रोड्यूस्ड लक्स, अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर।
देखिए सवाल दिया है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ लैम्प्स ईच हैविंग 300 lumens required to obtain an average illuminance of 50 lux on a 4 meter × 3 meter rectangular room. Which factors are considered for illumination calculation? Vast light factor, depreciation factor, coefficient of utilization. All of the above correct. Factors are considered for illumination calculation. Vast light factor. When a surface is illuminated by a number of lamps, there is a certain amount of wastage due to the overlapping of light waves. Its value will be between 1.2 to 1.5. Depreciation or maintenance factor. It may be defined as the ratio of illumination under the normal working condition to the illumination when everything is clean or new. Reflection factor. It may be defined as the ratio of luminous flux leaving the surface to the luminous flux incident on it. Its value will be always less than 1. अब देखिए एब्जॉर्प्शन फैक्टर, when the atmosphere is full of snow or smoke fumes it absorbs some light, hence absorption factor may be defined as the ratio of the net lumens available on the working plane after absorption to the total lumens emitted by the lamp. Its value varies from 0.5 to 1. Space to height ratio (SHR). The spacing to mounting height ratio (SHR) is the spacing between luminaires divided by their height above the horizontal reference plane. Apart from it, illumination required for work, lamp or bulb efficiency, area of room or place, etc. are also considered for illumination calculation. वास्ट लाइट फैक्टर मतलब कुछ लाइट कम काम की जगह तक नहीं पहुंचती हैं और बेकार चली जाती हैं। कैसे वेस्ट होती हैं? लाइट दीवार पर चली जाती हैं, सीलिंग पर पड़ जाती हैं, बल्ब की लाइट ओवरलैप हो जाती है। आज फॉर एग्जाम्पल मान लो 4 लोग टॉर्च चला रहे हैं, कुछ रोशनी एक दूसरे को टक पड़कर बेकार हो जाएंगी। इसीलिए क्या करते हैं, इसके लिए लाइटनिंग डिजाइन में एक्स्ट्रा लाइट जोड़ते हैं ताकि रूम में पर्याप्त रोशनी मिले। अब देखिए डिप्रिसिएशन मेंटेनेंस फैक्टर। समय के साथ बल्ब की रोशनी कम हो जाती है, डस्ट जम जाती है, बल्ब पुराना हो जाता है, रिफ्लेक्टर गंदा हो जाता है। आसान एग्जाम्पल देखिए, नई एलईडी ज़्यादा चमकती है, 1 साल बाद थोड़ी कम चमकेगी, इसीलिए इसके लिए एक्स्ट्रा लाइटिंग रखते हैं ताकि बाद में रूम ब्राइट रहे। अब देखिए तीसरा जो होता है वो रिफ्लेक्शन फैक्टर, मतलब कोई सरफेस कितनी लाइट वापस लौटाती है। आसान एग्जांपल, वाइट वॉल ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ब्लैक वॉल लाइट एब्जॉर्ब कर लेगी, रिजल्ट वाइट रूम ज़्यादा ब्राइट लगता है। अब देखिए चौथा एब्जॉर्प्शन फैक्टर, मतलब क्या है, कुछ चीज़ें लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कौन कौन? स्मोक, डस्ट, फॉग। देखिए फॉग में व्हीकल की लाइट कम दिखाई देती है, क्यों? फॉग कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए काम की जगह तक कम लाइट पहुंचती है। देखिए स्पेस टू हाइट रेशियो (SHR), बल्ब कितनी दूरी पर लगाने हैं। अगर बल्ब बहुत दूर होगा तो बीच में अंधेरा, अगर बहुत पास है तो लाइट वेस्ट होगी। आसान एग्जांपल, क्लासरूम में ट्यूबलाइट बराबर दूरी पर लगाते हैं ताकि हर जगह बराबर लाइट मिले। अब देखिए छठवां एरिया, लैंप इफिशियंसी, रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन। ये तीनों भी लाइटिंग डिजाइन में बहुत ज़रूरी है। एरिया ऑफ रूम, रूम बड़ा होगा ज़्यादा बल्ब चाहिए। लैंप इफिशियंसी, एलईडी बल्ब कम पावर में ज़्यादा लाइट देता है। तीसरा रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन, हॉस्पिटल, ऑफिस, रोड सबको अलग अलग लाइट चाहिए। बेडरूम में कम, क्लासरूम में ज़्यादा, ऑपरेशन थिएटर में बहुत ज़्यादा।